Hello, students. Welcome back to anthropology classes. Today, I will be discussing with you sociocultural anthropology. Sociocultural anthropology, as we know, can be divided into two branches. First one is social anthropology, and the second branch is cultural anthropology. Social anthropology discusses or deals with the study of society. Now, what is society? Can anybody tell me? Society are group of people living together at a place. Am I right? In simple way, society includes the group of people living together. Now, society is formed by, or society contains many social institutions. There are various types of social institutions like family. You know family. What is a family? फैमिली की डेफिनेशंस डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दी है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो तो हम डिस्कस करेंगे। वैसे जनरली व्हाट इज फैमिली? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, व्हाट इज फैमिली? कंसिस्ट्स ऑफ फादर, मदर and siblings. It is a social group, and family are part of society. And what is marriage? Marriage is a social relationship formed by, or it's a relationship between one or more female with one or more male, so that the child that get birth out of the sexual reproduction of both male and female are given full birth rights status, social are accorded social status by the society. Now, who started social anthropology? L. H. Morgan. He was American anthropologist who popularized social anthropology. L. H. Morgan wrote a book named Ancient Society. He was American anthropologist. So who was L. H. Morgan? He wrote Ancient Society, and he belonged to American School of Anthropology. Now, second branch is cultural anthropology. So cultural anthropology, E.B. Tyler, he was British anthropologist and who popularized cultural anthropology. Cultural anthropology is the study of cultures of the society. You know what is culture?
There are definitions, there are scholarly definitions that we will discuss later on, or I have discussed in my previous videos. The definition of culture has been given by E.B. Tyler and many other anthropologists. Now, cultural anthropology or culture is, I'm asking you, what is culture? Can anybody tell me what is culture? Culture is basically some total of ways of life. Culture is means lifestyle. Culture is lifestyle. Food habits. The food that we take is what is culture. Our dress pattern is nothing but culture. Every society comprises of people, and people belongs to one or the other religion, and religion means having some sort of belief. So what is belief? Belief system, or what is customs? All these are parts of culture. All this defines culture. So, Cultural School of Anthropology was started by E.B. Tyler, and he belonged to British School of Anthropology. And Social Anthropology was started by Alex Morgan, and he belonged to American School of Anthropology. Now, let us move forward. I am discussing with you genetic disorders. There is, whenever there is not proper functioning of our mental capacity or physical capacity, it is some sort of disorders we have. And why is the cause of these mental deformities and physical deformities? It is because of structural aberrations or numerical aberrations. I just want to tell you that in cellular biology, we discuss what is cell. It is building block of life. So cell contains nucleus, and there are 26 pairs of chromosomes in our cells. So out of 23 pairs, 22 pairs are autosomes and one pair is called sex chromosomes. So whenever there is numerical variation in the number of chromosomes, and whenever there is structural variation in the structures of the chromosomes, it leads to numerical and structural aberrations, and that is responsible for causing genetic disorders. There are various types of genetic disorders that are mentioned in our syllabus that we will take up, and I have discussed with you in the previous videos, and now I am also discussing with you
right now what is autosomal aberrations? Autosomal aberrations are due to defects in the any of 22 autosomes, and whenever there is any defect in it, it leads to autosomal abnormalities. And we have Down syndrome, we have Patau syndrome, we have Edwards syndrome, we have Cree-to-Chad syndrome. Down syndrome is that whenever there is a problem, whenever there is a structure, whenever there is a numerical changes, or when the chromosome number is 21 is trisomy, it is called Down syndrome. And whenever the chromosome number 18 is trisomy, it is called Edwards syndrome. And whenever chromosome number 13 is in trisomy, it is called Patau syndrome. There are many symptoms of such syndrome. Body has physical deformities, body has mental retardation. There are many things, there are a lot of problems due to this. Okay, then autosomal aberrations is over, then sex chromosomal aberrations. There are many disorders due to defects in the sex chromosomes. Like there may be one chromosome missing, or it might that there is one extra X or Y number of chromosome. So like Klinefelter syndrome, like okay, then we have intersex, we have super female. Okay, so all these are due to changes in the chromosome numbers of the cell. There are 20 to 25,000 genes present in our body, and there are many cells that are present in our body that you must know. So genes contain genetic information. It is the gene that will determine phenotype. And what is phenotype? Phenotype means what is, it is that characteristics that is visible. It is that characteristics of the body that is visible. For example, skin color is visible, hair color is visible, color of eyes is visible, height. Okay, they all are visible. That is called phenotype. So genes, genotype is responsible for phenotype. What हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? वो जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। जीन्स क्या है? एक सेगमेंट है डीएनए का। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी। इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें बेसेस होते हैं, इसमें शुगर फॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें। तो डीएनए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। देखिए, अगर कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है या फिर नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है,
तो मान लीजिए कि जैसे अब कुछ महीने पहले एयर क्रैश हुआ था गुजरात में, तो बॉडी कंप्लीटली जल गई हुई थी। तो वो बॉडीज को आइडेंटिफाई कैसे किया गया? डीएनए टेस्टिंग की गई, तो और फिर डीएनए को मैच किया गया फैमिली मेंबर्स के साथ। तो इससे बॉडीज को आइडेंटिफाई किया जा सका। तो अब फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी होती है जैसे क्राइम सीन में किसी ने मर्डर कर दिया, तो वो मर्डर करके भाग गया, है ना? तो अब उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसने अगर कोई प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ हेयर, ब्लड, स्किन अगर वहां पे छोड़ा होगा, then DNA testing is performed on it. So forensic anthropology evidences कलेक्ट करते हैं। नेचुरल डिजास्टर जहां पे होता है वहां पे, क्राइम सीन पे करते हैं कलेक्ट एविडेंसेस, और कोर्ट के इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्ट such evidences are produced before the court. तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का एप्लीकेशन वास्ट है। आप जेनेटिक मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को देख लीजिए। मेंडल कोई बायोलॉजिस्ट नहीं था, ये मॉन्ग था। इसने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इसने ट्रेड्स के ऊपर स्टडीज की। तो इसने एक्सपेरिमेंट करके उनकी क्रॉस ब्रीडिंग की। तो क्रॉस ब्रीडिंग जब की, तो इसने पाया, इसने लॉस दिए, लॉस ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये लॉस बाद में जाके बन गए लॉस ऑफ हेरिडिटी, कि कैसे हमारे जीन्स हमारे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। उसके लॉस, किस लॉस के जरिए वो ट्रांसमिट होते हैं, उसको एक्सप्लेन किया था मेंडल्स, ग्रेगर मेंडल ने। हम पैस्टोरल ट्राइब्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। टोडा ट्राइब एक पैस्टोरल ट्राइब है, ओके, और ये नीलगिरी हिल्स में रिजाइड करते हैं। बाय पैस्टोरलिस्ट्स आई मीन टू से दैट ये टोडास ट्राइबल ग्रुप डोमेस्टिकेशन करते हैं एनिमल्स की, ओके। तो बुफेलो इनके लिए टोटेमिज्म है, तो ये टोटेमिज्म की वर्शिप करते हैं, उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं ये। तो हमें जब देखना होएगा तो कैसे हमें रिलीजन लाइफ हम स्टडी करते हैं। चेंचूस हैं, जुआंग्स हैं, ये हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब्स हैं। बाकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं, वो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में भी आते हैं, और हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब्स भी हैं। अब इनके साथ बहुत सारी इनजस्टिस हुआ है। अब ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पीरियड से इनको एक्सक्लूड करके रखा गया, तब पार्शली इनके एरियाज को फुली एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज इनको घोषित किया गया। इनका फॉरेस्ट को
एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने, तो इनका फॉरेस्ट से इनको रिमूव कर दिया गया। इनको फिर आके सिटीज में आके इनको जॉब की तलाश करनी पड़ी। ये इनकी लिटरेसी रेट इज ऑल्सो वेरी लो। They are under nutrition. There are many problems of wasting and stunting among the children of tribal groups. There are many tribal groups like Gujars, there Lapchas, Bhotias, Bhils, Warlis, Kotas, Todas, Irulas, Kurumbas, Paniyans. All these are tribal groups. Some are hunting gathering tribes, some are pastoralist tribes, some are agriculturist tribe like Garo, Khasi. They practice shifting cultivation. So soil's fertility also gets hampered due to shifting cultivation. So they clear vast chunk of forest land and they do agriculture. And after many years, when the fertility of soil becomes very low, what these tribes do, then they move to some other location and they fell off many trees and plants. They cut many trees and plants and do deforestation, and when the land is cleared, then they do shifting cultivation. There are various prehistoric culture. Now define prehistoric culture. We don't have written records about prehistoric culture. So how do we study prehistoric culture and what information we have regarding prehistoric culture? It is based on the material facts that have been collected due to excavations done by many archaeologists, by many anthropologists. For example, Robert Bruce Foote, he is called the father of prehistorical archaeology in India. Then S.D. Sankalia, V.N. Mishra, V.N. Vakanka, they carried D.R. Ram Sahani, R.D. Banerjee. All these anthropologists, Mishra, Vakanka, Sankalia, Robert Bruce Foote, carried, there were exhibitions done by H.D. Tera Patterson. So they get material facts, material artifacts in the form of pottery. They get to know the cave arts done on the walls of the cave, like hunting scenes डिपिक्ट कर देते थे ट्राइबल्स अपने फ्री टाइम में। हमारे एंसेस्टर्स रिलीजन भी फॉलो करते थे, वो बिलीव करते थे सुपर नेचुरल फोर्सेस में। तो बहुत सारे मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज होते हैं, जैसे प्रीस्ट है, शमान्स हैं, देन विच क्राफ्ट है, प्रीस्ट है। इनका काम क्या होता है, ये कुछ तो सफरिंग्स को रिमूव करने के लिए काम करते हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए काम करते हैं, और कुछ दूसरों के ऊपर ब्लैक मैजिक करके उनको नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं।
तो सॉर्सरर्स, विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक किया जाता है इनके द्वारा। इनमें सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जिनको ये इस्तेमाल करके सफरिंग्स को रिमूव किया जाता है, डिजीज को ट्रीट किया जाता है। उस टाइम में साइंटिफिक टेम्परामेंट तो नहीं था लोगों के बीच में, तो शादियां भी क्या करते होंगे। पहले तो नहीं था, पहले तो प्रोमिस्कुअस था, कोई किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता था। फिर अब जो ऑफस्प्रिंग बॉर्न होते थे, पता नहीं चलता था कि वो किसका ऑफस्प्रिंग है। तो इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए क्या हुआ, फैमिलीज एस्टेब्लिश हुई, मैरिज का इमरजेंस हुआ, जिससे क्या हुआ, बायोलॉजिकल फादर कौन है ऑफस्प्रिंग का ये पता लगाना आसान हुआ। अभी भी आप देखेंगे कि किसी सोसाइटी में बायोलॉजिकल फादर को इम्पोर्टेंस दी जाती है और किसी सोसाइटी में सोशल फादर को सिग्निफिकेंस दी जाती है। अब लैंग्वेज कैसे बोलता इसने शुरू किया, तो पहले तो उसने साउंड्स प्रोड्यूस किए, सिंबल्स के जरिए, साइंस के जरिए इसने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया। फिर स्टेप बाय स्टेप इसने वर्ड्स बनाना शुरू किए, वर्ड से बातें करने लगा। उसके बाद वर्ड्स के थ्रू टॉक करता था, उसके बाद धीरे धीरे, उसके बाद ग्रेजुअली सेंटेंसेस फ्रेम किए जाने लगे और इससे लैंग्वेज का ओरिजिनेशन हो गया। It is language that is responsible for our thoughts, and it is through thought that language is born. There are many, S.C. Roy is called the father of Indian anthropology. Aristotle is called the father of anthropology. And Franz Boas is called the father of American anthropology. You must know all these name of the scholars and क्या स्टडीज इन लोगों ने की, किस ईयर में स्टडीज की, और आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी में क्या इनका मेन जो वर्क था उसको आपने याद करना है, स्टडी करना है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। हमारा जो सोशल सिस्टम है उसमें आप देखिए वर्णास, हमारे 4 वर्णास है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम्स हैं 4, इन आश्रम्स के में हमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और हम इन डिफरेंट स्टेजेस से हमें पास करना होता है। तो ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, एंशिएंट सोशल स्ट्रक्चर है। तो ये स्टेजेस से एक हिंदू को गुजरना होता है, पास करना होता है द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, और किसी न किसी वर्णा से बिलोंग करता होता है ये हिंदू सोसाइटी के लोग। और ये बताता है कि कैसे हमारा कर्मा हमारे एक्शंस को बताता है।
हमारे कॉन्सिक्वेंसेस डिटरमाइन करना, इसी को हम बोलते हैं कर्मा थ्योरी। तो कास्ट आप देखेंगे, वर्णा की शुरुआत वैदिक एज में हुई थी। कास्ट ये ब्रिटिश लोग लेके आए थे, इन्होंने कॉइन किया टर्म कास्ट। पहले वर्णा डिपेंड्स ऑन द occupations, whereas caste depends upon birth. I mean to say that caste is decided by in which family a person is born, and the caste of the family becomes the caste of individual. And in Vedas, Varna was determined on the basis of occupation of the individuals in the society. Occupation of the individual in the society, that is called Varna. There are four ultimate goals of human life: performing dharma and karma. Actions and consequences means moral duty constitutes dharma. Arth means pursuing economic goals, economic pursuits. Calm means indulging in pleasure activities, emotions. Then last goal of life is moksha, means an individual is born, and after passing through the various ashramas and the good deeds that he performs during his lifetime decides whether that person will take a rebirth again, or will that person attains moksha, means free from the cycle of birth and death. Though there are many dominant castes in the village, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है और इनके पास एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा होती है, और पॉलिटिकल पावर भी इनमें होती है। जैसे यादव्स हैं, जाट्स हैं हरियाणा में, यादव्स हैं यूपी में, तो ये डोमिनेंट कास्ट है, कहलाती है। जैसे एम.एन. श्रीनिवासन ने रामपुरा विलेज में ओखालीगास को बताया कि ये डोमिनेंट कास्ट है, रामपुरा विलेज कर्नाटका में। उसके बाद विलियम वाइजर ने स्टडी किया, हिंदू सोसाइटी में जजमानी सिस्टम प्रेजेंट है रूरल सोसाइटी में। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस के लोग रहते हैं, जैसे कुम्हार जो कि पोट्री में डील करते हैं। हम बात ये कर रहे हैं इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम की, ट्रेडिशनल इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्लैक स्मिथ काम करता है, एक्टिविटी करता है। कुम्हार गोल्ड स्मिथ गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाता है। तो ये लोग अलग अलग एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक एक कास्ट को।
जजमांस को, ये डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी ब्लैक स्मिथ होगा, वो आयरन इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड करेगा जजमांस को। जो गोल्ड स्मिथ होगा वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स प्रोवाइड करेगा। और जो वॉशरमैन है वो क्लोथ्स वॉशिंग करेगा जजमांस के। तो जजमांस रिटर्न में उनको फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। उनकी इकोनॉमिक लाइफ डिपेंडेंस होती है जजमांस के ऊपर। तो एक रिलेशन होता है जजमांस के बीच में और कामिन्स के बीच में। और कामिन्स कौन हो गए? ये सारे ब्लैक स्मिथ्स और गोल्ड स्मिथ्स, washerman, all these are categorized as Kamin. So there is a relation between Jajmans and Kamin, and that is called as Jajmani system. It is getting degraded day by day. It is getting faded away with the passage of time, but still it is present in some patches of the rural society. It is also an important component of traditional Indian social structure. We have tribal caste continuum. Yes, studied by F.G. Bailey. डिस्कस करें आप कंटिन्यूटी बेसिस पे, घबराए नहीं, ब्लैंक नहीं होना है, समझना है, डिस्कस कर देना है, बोल देना है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। यही तो बात है, यही को तो समझना है, अंडरस्टैंड करना है, डिस्कस करना है व्यू पॉइंट्स को। आप देखेंगे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को, कैसे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी चलती है, वो क्या खाते हैं, वो क्या एक्टिविटी करते हैं लाइवलीहुड के लिए। जैसे जुआंग्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी है हंटिंग गैदरिंग। अब ट्राइबल सोसाइटी में बिग मैन होता है, एल्डर मेंबर होता है सोसाइटी का, उसको सारे मेंबर्स रिस्पेक्ट करते हैं, हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं उसको। और वो पॉलिटिकल अफेयर्स को रेगुलेट करता है। वो एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल हेड होता है ट्राइबल सोसाइटीज का, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करता है। जैसे ट्रोबरियन आइलैंडर्स में हेड जो होता है उसको बोलते हैं बिग मैन। तो उसकी ड्रेस डिफरेंट होती है, और अपना सोशल स्टेटस बताने के लिए फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस फीस्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज वेस्टेड। और जितना ज्यादा फूड की वेस्टेज होगी वो ट्राइबल ग्रुप उतना ही रिच कहलाता है, उतना ही सोशल स्टेटस उसका हाई होता है। ये वहां पे ऐसा मानते हैं ट्राइबल ग्रुप्स। अब ट्राइबल ग्रुप्स में बार्टर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब मार्केट्स लगती हैं वहां पे, वीकली मार्केट्स लगती हैं, यहाँ पे वो अपना जो सरप्लस प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके, वो उनको वहां पे जाके सेल करते हैं। अब ट्राई फेड एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आती है। तो ये वेलफेयर स्कीम्स लेके आते हैं ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। स्कॉलरशिप स्कीम्स है, जैसे प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स है ट्राइबल्स की पॉपुलेशन के लिए। गवर्नमेंट ने एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स ओपन किए हैं ट्राइबल एरियाज में।
अब ट्राइबल को लैंड एलिमिनेशन से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट ट्राइबल एरियाज में लगता है ना, तो क्या होता है, ट्राइबल लोगों को वहां से उनको रिमूव कर दिया जाता है, और गवर्नमेंट का ये काम होता है कि इनको प्रॉपर रिहेबिलिएट इनको किया जा सके, लेकिन इनकी लैंड तो छीन ली जाती है बट इनको प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट ने इनको लैंड लेने के वक्त जो प्रोमिस किए होते हैं वो प्रोमिस गवर्नमेंट फुलफिल नहीं करती, या उसको फुलफिल करने में बहुत ज्यादा डिले होता है। इससे क्या होता है, ट्राइबल्स कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ट्राइबल्स रिवॉल्ट करते हैं, उनमें रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इनमें उभर के आता है। वो अपने आप को यूनाइट करते हैं, और वो यूनाइट करने का बेस क्या है, वो ये मान के चलते हैं, एक इमेजिन्ड रियलिटी में वो रहते हैं कि हमारी एक लैंग्वेज है, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक लैंग्वेज है, रीजन है। तो ये फीलिंग आ जाती है उनमें रीजनलिज्म की, और वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो रिवॉल्ट करते हैं और वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। जैसे फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल जो डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन्ड है, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में। और जो फिफ्थ शेड्यूल है वो सारे जितने भी ट्राइबल स्टेट्स हैं इंडिया की वहां पे लागू होता है, एक्सेप्ट द ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, एक्सेप्ट द ट्राइब्स कवर्ड इन द सिक्स्थ शेड्यूल। तो ये है फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल। अब आर्टिकल 46 कहता है कि आपने माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, ये मेंशन्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और बहुत सारे कार्य हो रहे हैं उनके लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो कोई भी रिलीजन को अपना सकते हैं, अपने रिलीजन को वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से लेके 30 तक इनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और 19 से 25 से लेके 28 तक और 29 30 दो आर्टिकल्स हैं, वो बताते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इनको देते हैं। अब माइनॉरिटी ग्रुप्स अपना उनका जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं, ताकि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो है उनको वो एजुकेट कर सके वहां पे। तो ये चीजें हमने डिस्कस करनी है, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, आपको करनी पड़ेगी। दैट कोई हार्डवर्क का कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते रहे हैं हम, तो देखिए हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं कि कैसे फैक्टर्स क्या क्या हैं, ह्यूमन की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है, फिजिकल डेवलपमेंट हो जाती है, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। इसके लिए न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है, इसलिए लिटरेसी लेवल रोल प्ले करती है, इसलिए हेल्थ फैसिलिटीज कितनी है अवेलेबल वो रोल प्ले करती है। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पॉवर्टी में रह रहे हैं जहाँ जहाँ रिच लोग हैं, मैरिजेस विमेन की अर्ली मैरिजेस हो रही हैं या लेट मैरिजेस हो रही हैं, विमेन जेंडर इक्वलिटी प्रेजेंट है सोसाइटी में या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये फर्टिलिटी, फिकंडिटी और नेटलिटी मोर्टेलिटी को ये इम्पैक्ट करते हैं, ये करते हैं ये सारे फैक्टर्स। तो इनको इनको समझना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चाहिए। तो लिखिए ट्राइबल्स के नाम: जुआंग्स, चेंचूस, इरूलास, गारोस, खासीस, नागास, गुजर्स, बकरवाल्स, लेप्चास, बोटियास, लद्दाखीस,
हिमालयन रीजन में एक ट्राइबल ग्रुप रहता है, उनका नाम नहीं मेरे को, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। वर्लीस है, सिद्दीस है, कोलीस है, केवालाई, जुआंग्स है, गॉन्ड्स है, संतल्स है, मुंडास है, ओरवान्स है, कुरुम्बास है, इरुलास है, पनियंस है। कुछ पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं जो कि ट्राइबल्स में भी वो सबसे गरीब ट्राइबल्स हैं। लिटरेसी रेट लो है, पॉवर्टी हाई है, उनकी लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होने वाली है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, जस्ट स्टैग्नेंट हो गई है, तो उनको हम कहलाते हैं पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ओके गाइस, आर यू गेटिंग मी? व्हाट एम आई सेइंग? So guys, hard work is the key to success. पढ़ा है सभी ने? ओके okay. अब बहुत सारे फैक्टर्स ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, है ना। अब बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम जेनेटिक स्टडीज करते हैं, जीन्स को स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे पेडिग्री एनालिसिस है, ट्विन मेथड है, को ट्विन मेथड है, बायोकेमिकल मेथड है, क्रोमोसोमल एनालिसिस है, ये मेथड्स हैं। फॉसिल्स एविडेंसेस की बात करें तो फॉसिल एविडेंसेस से हम एवोल्यूशन को ट्रेस कर पाते हैं, हम अपनी एंसेस्ट्री को समझने के लिए हम कैपेबल बन जाते हैं। तो बहुत सारे पैलियोटोलॉजिस्ट ने फॉसिल्स रिमेन्स की स्टडी की है, उनके स्कल को स्टडी किया है, जॉस को स्टडी किया है, मैंडिबल्स को स्टडी किया है, सैजिटल क्रेस्ट है, सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस है, स्पाइन एस शेप्ड है, फेमur ब्रॉड बेस्ड है, फेमur स्ट्रॉन्ग है, स्टाउट है। बर्गमैन्स रूल, एलेंस रूल क्या बोलते हैं? बर्गमैन्स रूल कहता है जो इंसान कोल्डर रीजन में रहते हैं उनकी बॉडी जो है वो स्टॉकी होती है, और बर्गमैन कहता है जो पीपल कोल्डर रीजन में रह रहे हैं उनकी उनकी एम्पेंडेजेस, बॉडी एम्पेंडेजेस लॉन्ग होती है, हाइट उनकी लंबी होती है, और वो थिन होते हैं और लॉन्ग होते हैं। एलन बर्गमैन रूल कहता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है एनवायरनमेंट में रहती है और अपने आप को अडेप्ट करती है। नेचुरल सिलेक्शन भी इसमें रोल प्ले करता है, आइसोलेशन है, म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, तो ये फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। आपने जिराफ की एग्जांपल दी कि जिराफ कैसे उसकी नेक बड़ी होगी, ये लमार्किज्म ने एक्सप्लेन किया है। लमार्क जिराफ एग्जांपल भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक दी थी चार्ल्स डार्विन ने, उसने कहा कि कैसे वेरिएशन आती है हमारे ह्यूमन स्पीसीज में, कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें वेरी करती हैं, है ना। तो ये चीजें आपने डिस्कस करनी है कि नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, बाकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि नेचर उन फेवरेबल ट्रेड्स को उन ट्रेड्स को फेवर करता है, फेवरेबल ट्रेड्स को वो फेवर करता है, और जो अनफेवरेबल ट्रेड्स होते हैं वो ट्रेड्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो आपको ये चीजों को डिस्कस करके, समझ के, अंडरस्टैंड करके इनको लेना ही होगा, समझना ही होगा कैसे हम इसमें डिस्कस करते हैं, हम अपने आइडियाज, व्यूज को हम इंटरप्रेट करते हैं, अपने व्यू पॉइंट को आप अपने चेंज करिए, अपने थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करिए, आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी।
यहां पे नहीं, आप यूपीएससी आईएएस नहीं करोगे तो आईपीएस में चले जाओगे, आईपीएस नहीं करोगे तो और किसी फील्ड में चले जाओगे, अब जेकेएस कर लोगे, अगर इसमें नहीं कर पाओगे तो आप कहीं बैंकिंग में, तो एक बेहतर इंसान आप बन के निकलोगे। अगर आप तैयारी करते हो, प्रेपरेशन करते हो यूपीएससी की, तो आप एक बेहतर इंसान बन के जाते हो। जैसे स्कूल कॉलेज हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, वैसे ही आप यूपीएससी की प्रेपरेशन करते हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आप सिलेक्शन के लिए टारगेट करते हो कि मुझे, तो अगर सिलेक्शन हो जाती है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर अगर नहीं भी होती है तो कहीं और तो होगी होगी, और आपको एक बेहतर इंसान जो है वो बना के जाएगी हमेशा हमेशा, जिस सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है आपकी पर्सनैलिटी को ये इंप्रूव करके ही जाएगी। एंथ्रोपोलॉजी में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैं अपने व्यूज ना दे सकूं, अपनी स्टडीज को ना कोट कर सकूं। आप पढ़िए इसको, जेम्स फ्रेजर ने बुक लिखी थी गोल्डन बो, उसमें इसने मैजिक को, रिलीजन को स्टडी किया था। ये क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट सिस्टम से बिलोंग करते हैं। अब कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से मैंने बताया था, मार्गरेट मीड है, अर्थ बेनेडिक्ट है, मेलिनोस्की है, कोरा डू बॉस है, तो ये सारे पर्सनैलिटी एंड फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। मार्गरेट मीड एक फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, रथ बेनेडिक्ट भी एक फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मेलिनोक्सी फंक्शनलिज्म से बिलोंग करते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से बिलोंग करते हैं, और बताया है कि कल्चर कुछ बड़े सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। कल्चर एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि फंक्शंस को परफॉर्म करता है। आपको इस तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट को स्टडी करना होगा, डिस्कस करना होगा, समझना होगा, तभी बातें क्लियर होंगी, आपके दिमाग के अंदर घुसेंगी। कूल रखो माइंड को, तो एनकरेजिंग होना चाहिए, डिबेटेबल होना चाहिए, जस्ट गेट स्मार्ट इनफ, वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, हिंदी के ऊपर भी, इंग्लिश के ऊपर भी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमने एविडेंसेस देखे हैं, कैसे उनकी होमोसैपियंस के डिफरेंट स्पीसीज है, मैन एक ऑर्डर प्राइमेट है, देखा हमने, दो डिविजन्स बनती हैं इसकी, प्लेटिरिनी, कैटिरिनी एक डिवीजन बनती है। ओके, स्ट्रेप्सिरहिनी, हैप्लोरिनी, कैटिरिनी, प्लेटिरिनी, ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड एप्स एंड ह्यूमंस, इस तरह से आप प्राइमेट टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, ब्रचाइजेशन ये करते, ब्रकाइजेशन इनका लोकोमोशन है, नकल वॉकिंग करते हैं। समझिए, आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको बेटर तरीके से आप चीजों को एनालाइज कर सकोगे और रिमेंबर कर सकोगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना आप किसी भी चीज का एनालिसिस नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। सो
एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक अनिवार्य सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। चाहे वो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसकी हर स्टडीज का, सब्जेक्ट्स का ये इंटीग्रेटेड है। ये एक कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट डिसिप्लिन नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बड़े सारे सब्जेक्ट्स की इंटीग्रेशन से बना हुआ है। अब देखिए, अब बच्चे को गाइडेंस की जरूरत होती है। अब बच्चे को गाइडेंस डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे चाहिए होती है। अब जब 10th करता है तब उसको गाइडेंस चाहिए होती है कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है। 12th करता है तो उसको तब उसको गाइडेंस चाहिए होती है, और ग्रेजुएशन के बाद उसको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो इस टाइम पे मेंटोर का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो मेरे YouTube चैनल का नाम है एंथ्रोपोलॉजी इंसाइट्स एंड एथिक्स हब। तो अभी मैं मेजरली फोकस कर रहा हूं एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर। हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम करते हैं। यूएनओ में एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग में एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेल्प प्रोवाइड करते हैं। वेलफेयर मेजर्स को एडवोकेट करते हैं। एनजीओज के साथ काम करते हैं। स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस बढ़ गई है। अभी ट्राइबल्स को मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होता, जैसे कि वो पहले रहते थे। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन लेते थे, और वो पूरी लाइफ, टिल द होल लाइफ, दे वर अनेबल टू repay द डेट। सो उनको अपनी लैंड से बेदखल कर दिया जाता था मनी लेंडर्स के द्वारा, और वो कहीं के नहीं रहते थे। अब गवर्नमेंट डेवलपमेंट डैम्स बनाती है, माइनिंग का प्रोजेक्ट करती है। अब ग्राम सभास है, अब ग्राम सभा को पूछना होता है, तब जाके वहां पे माइनिंग का प्रोजेक्ट लग पाता है। ये किसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ? पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। लैंड कंपेंसेशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट से अब उनको टाइमली कंपेंसेशन दी जाती है। अब डीएम साहब उनको टाइमली कंपेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको रिहेबिलिएट भी किया जाता है डीएम साहब के द्वारा। तो गाइस, इस वीडियो में हम जहां तक ही रखेंगे। हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम अपने वीडियोस को बनाएंगे और आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे।
तो गाइस अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी वीडियोस हैं आपके लिए हैं, वो आपकी पढ़ाई के लिए हैं, तो उनको ज़रूर रेफर करिए गाइस। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।